Hi students, in my previous lecture we were dealing with confessions and we saw that a confession to be made admissible must be free from the taint of inducement, threat or promise with respect to the charge, and also it must come from a person in authority. We saw all the aspects that when can a confession be made relevant if the threat, inducement और promise का जो effect है वो खत्म है, वो हमने देखा section 28 में. So 24 and 28 we read together. We then came on to another aspect that confessions made before any police officer are inadmissible, that we covered in section 25. We now go on to section 26. As far as section 26 goes, 26 deals with any confession made in police custody to anybody. 25 dealt with confessions made before a police officer. Now, any confession made during police custody is again inadmissible. Let's go to section 26, then we'll discuss. No confession made by any person whilst he is in the custody of a police officer. So, no confession made by any person while he is in the custody of a police officer shall be proved against such a person, unless it be made in the presence of immediate presence of a magistrate. दो चीजें हैं, दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है कि कोई भी कन्फेशन जो एक एक्यूज ने किया है while he is in the custody of a police officer is not admissible. It is admissible in police custody only if it is made in front of a magistrate. Police custody is taken under CRPC. Whenever investigation has to be carried out, now police अंडर सेक्शन 57 पहली सीआरपीसी में पहली बार प्रोड्यूस करते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने. तो मैजिस्ट्रेट्स के अगर उनका 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना किया हो तो पुलिस फिर 57 में मांगती है कि सर हमें पुलिस कस्टडी दे दी जाए, और सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15 डेज अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी. एक बार पुलिस कस्टडी शुरू हो गई, now this section comes into operation. Any confession does not mean a confession before a police officer. Any confession would also include a confession made before a non-police person. Let's take an example. एक पुलिस कस्टडी में है, एक पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है एक एक्यूज्ड. उसका दोस्त उसको मिलने आता है और उसको कहता है तूने क्या कर दिया. अब वो ऊंचा ऊंचा रोता है और कहता है बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से. या उसकी वाइफ मिलने आई, उसने कहा ये क्या कर दिया आपने, वो रोने लग पड़ा और बोला बहुत बड़ी गलती हो गई. नाउ दिस कन्फेशन मेड बिफोर हिज फ्रेंड, पुलिस प्रेजेंट नहीं है या वाइफ, इज स्टिल नॉट एडमिसिबल. वाइफ तो चलो वैसी बार्ड है क्योंकि एनी कम्युनिकेशन मेड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन, वो वैसी बार्ड है. बट कोई भी कन्फेशन जो एक बार पुलिस कस्टडी शुरू हो गई तो वो कन्फेशन इनएडमिसिबल है. बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, अ पर्सन हुज in police custody, he gives a confessional statement to his friend. Is it relevant? It is not under inducement, threat or promise.
It is not even under exhortation. It is a suo motu confession made by the accused under guilt. गिल्टी है वो, इसीलिए वो अपने वाइफ के सामने या अपने, चलो वाइफ से तो मैंने बोला प्रिविलेज है, एक दोस्त के सामने रोता है और अब वो कहता है जी मेरे से तो गलती हो गई. कैन दिस कन्फेशन बी यूज्ड? द आंसर इज नो. Under no circumstances a confession made to anybody. I'm not bothered about police officers. वो कवर हो चुके हैं 25 में. It is not admissible. इसके ऊपर we had a very interesting case. I would like to share this case. एक बहुत पुराना केस है ये 1933 का. This was a Privy Council case. किंग एम्परर वर्सेस पंचम. किंग एम्परर वर्सेस पंचम. इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अभी बताने वाला हूं, पंचम वाला केस, इस तरह के प्रोपोजिशन बन के आ जाते हैं. इन दिस केस व्हाट हैपेंड, अ पुलिस ऑफिसर रीच द स्पॉट. एक मर्डर हुआ था. पुलिस ऑफिसर गांव पहुंचा, उसने एक्यूज को गिरफ्तार किया. लोगों ने उसको पकड़ के रखा हुआ तो उसने गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद उसने, वो लोग जो इकट्ठे हुए तो उसने कहा इसको पकड़ के रखो, मैं अभी मौका देख के आता हूं, मौके की कार्रवाई करके आता हूं. लाश वहां पड़ी है, मुझे पंचनामा करना है, तो मैं आता हूं, इसको यहां बिठा के रखो. तो उसने उसको अरेस्ट किया. अरेस्ट करके वो चला गया. अब गांव के लोगों ने उसको अब धिक्कारना शुरू किया. तुझे शर्म नहीं आती, गांव में रहते हुए तूने मर्डर कर दिया, वगैरह वगैरह. Now this man started weeping and उसने पूरे गांव के सामने बहुत माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सजा काटने को तैयार हूं. The matter came up before Lucknow High Court. Lucknow High Court now said no, this confession is hit by section 26. Moment police officer arrested him and went away, he was now under police custody. It is not necessary that police custody में physical custody जरूरी है. So once he was arrested, and now even if the police officer was not present, and this was an extrajudicial confession being made by the accused before the entire village, yet it is hit by section 26. This is one of the very beautiful judgments. Pancham का बहुत अच्छा judgment है. If I was the examiner, I would definitely put up this question in exams. So please remember, any confession made by an accused before any police officer at any point of time, or any confession made by the accused while he is in police custody, is hit. Police custody, I've just told you who is a police officer. Extrajudicial confessions cannot be made in a police custody. I mean, if they are made, they are not admissible. But suppose he is in judicial custody. You know what is the difference between police custody and judicial custody? जब हम एक एक्यूज को पकड़ते हैं, हम मीन्स पुलिस पकड़ती है, तो उसको वो पहले एक 57 में हम मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है, क्योंकि आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है हमें. तो जब हम उसको पेश करते हैं तो मैजिस्ट्रेट के पास 3 विकल्प होते हैं. ए, उसको छोड़ दे, बेल पे छोड़ दे. बी, पुलिस के पास भेज दे, कि अभी वो कहते हैं जब हमने और इन्वेस्टिगेट करना है तो उसको पुलिस कस्टडी दे दे, जो मैक्सिमम 15 दिन की हो सकती है. या फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दे, जो 15 दिन एट अ टाइम होती है, बिकॉज ऑफ सेक्शन 309 सीआरपीसी. जुडिशियल कस्टडी होती है जो हमारा होता है ना, जो स्टेट का जेल होता है, उसको हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं.
जैसे चंडीगढ़ में हम कहते हैं बड़ैल जेल, पुलिस कस्टडी थाने में होती है, जो हवालात कहते हैं। तो हवालात जो होती है वो होती है पुलिस कस्टडी, और जो हम जेल भेज देते हैं, जो थाने का सब जेल होता है, जो जेल्स होते हैं, बड़े जिले के जेल होते हैं, कारागृह जिसको हम कहते हैं, उनको हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। अब एनी कन्फेशन मेड इन अ जुडिशियल कस्टडी इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 26। तो बाई चांस हम ये करते थे, मैं अपने कुछ राज नॉट ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, पर कुछ एक दो राज में आई कैन ओपनली पब्लिकली से, कई बार क्या होता था, हमें पता होता था कि इस आदमी ने किया है, और हमें ज्यादा पुलिस कस्टडी नहीं मिलती थी, एक दो दिन की मिली, जुडिशियल कस्टडी हो जाती थी। तो हमारे कुछ लोग होते थे, अगर बाई चांस हम जानते हैं जुडिशियल कस्टडी में, तो हम उनको बोलते थे कि इससे किसी ना किसी तरह से कन्फेशन ले लो, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ले लो। तो क्या होता है, नॉर्मली एक प्रॉब्लम क्या होती है कि क्रिमिनल्स की आदत होती है कि जेल में जाके डींगे मारना, दे वांट टू शो आई एम अ वेरी हाई क्रिमिनल। वहां पे क्या मापदंड क्या होता है कि मैं तेरे से ज्यादा बड़ा क्रिमिनल हूं। तो वो क्या होता है, कई बार हमारे कुछ लोग होते हैं जो अंदर होते हैं, हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं किसी भी तरह तुम ये बकवा लो उससे। अगर वो जेल में बक देता है कि जी मैंने ये ऑफेंस किया, वो कन्फेशन कर देता है और सारे कैदियों या एक कैदी या दो कैदियों के सामने, दैट इज अ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, दैट इज रेलेवेंट एंड एडमिसिबल, दैट इज नॉट हिट either by 25 or by 26, and it is neither made under inducement, threat or promise. एक कैदी is not a person in authority, जो खुद कैदी है वो आपकी क्या मदद करेगा। इसीलिए कन्फेशंस इन जुडिशियल कस्टडी हमारा एक बहुत बड़ा हथियार होता है, अगर हम अंदर हमारा कोई आदमी है जो हमारे कॉन्फिडेंस का है। So I hope you are clear. The word police custody is most important here and not judicial custody or any other custody. इसके अंदर एक इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या है? That unless it is made before a magistrate. पुलिस कस्टडी में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करते करते एक्यूज कहता है मैंने अपना कन्फेशन देना है। हम ये मान के चलते हैं पुलिस मारती नहीं है, बड़े प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, और एक्यूज आउट ऑफ गिल्ट ये कन्फेशन करना चाह रहा है। तो प्लीज रिमेंबर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हम कन्फेशंस की बात करते हैं वो ऑस्टेंसिबली अंडर गिल्ट होती है, उसको रियलाइज हो गया कि मैंने क्या कर दिया। कहीं भी ये प्रिजम्पशन नहीं है कि जोर जबरदस्ती पुलिस ने की है। करते हैं नहीं, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। अब सपोज हमने उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो फिर अब कहता है कि सर मुझे कन्फेस करना है। कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इज हिट बाय 25। कन्फेशन टू एनीबडी एल्स इन पुलिस कस्टडी इज हिट बाय 26। वो करना चाह रहा है पर लॉ ने हमारे हाथ बांध दिए। उसका एक रास्ता निकाला है कि इन पुलिस कस्टडी वो अब मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस कर सकता है, तब वो कन्फेशन एडमिसिबल है। मैंने बहुत बार जब मैं पुलिस ऑफिसर था तो मैंने बहुत बार देखा कि पुलिस ऑफिसर्स आईओज एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो 161 में एक्यूज्ड का कन्फेशन लिखते हैं, और भी बड़ी गलती, जो मैजिस्ट्रेट होते थे वो उसको पढ़ते थे। और कई बार तो एक बार तो मैं आई वाज अपेयरिंग एज अ विटनेस, मैजिस्ट्रेट साहब तो उसको बोल रहे थे कि तूने तो बयान भी दिया पुलिस को कि तूने कन्फेस किया,
उसको बोलना ही नहीं चाहिए था मैजिस्ट्रेट को. इट इज बैड इन लॉ. मैजिस्ट्रेट शुड नॉट मेक इट एडमिसिबल. खैर, उसको छोड़ते हैं. तो अब एक्यूज खुद करना चाह रहा है, ऑस्टेंसिबली गिल्ट के अंदर अपनी इच्छा से करना चाह रहा है. पुलिस के सामने कर नहीं सकता है, पुलिस कस्टडी में किसी और के सामने कर नहीं सकता है, कहां करे? इसीलिए सेक्शन 164 रेड विद 281 सीआरपीसी बनाया गया है. द वाई ऑफ 164 comes from section 26 इंडियन एविडेंस एक्ट. अब वो कन्फेशन, इसीलिए 164 के कन्फेशंस हमेशा मैजिस्ट्रेट के सामने होते हैं. ए बी ओनली अंडर पुलिस कस्टडी, पुलिस उसको पेश करती है. अब वो 164 का कन्फेशन एडमिसिबल है. जो ये 164 का कन्फेशन होता है, ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, ये इवन सब्सटैंटिव एविडेंस भी नहीं है. क्यों? अभी ये पुलिस कस्टडी में है. पुलिस में पता नहीं क्या क्या उसको बोला हुआ है कि अगर तू ऐसा ना बोला तेरी फैमिली तो बाहर है. हो सकता है ऐसा होता हो. तो नाउ ही मे बी अंडर अ प्रेशर. पुलिस ने हो सकता कोई ऐसे उसकी दुखती रग पकड़ी हो कि अगर तू ना बोला तो ये होगा. दैट इज वाई मेनी टाइम्स 164 के कन्फेशंस रिट्रैक्ट कर लेता है एक्यूज्ड. जैसे उसका ट्रायल शुरू होता है वो तब कहता है कि सर ये मेरे पे प्रेशर डाला हुआ था पुलिस ने, मैं बिल्कुल. इसीलिए चाहे 164 के अंदर मैजिस्ट्रेट हैज टू अगेन एंड अगेन टेल हिम कि तुम्हें कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ यूज होगा. ये उसको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, अपना साइन करने पड़ते हैं, तब भी रिट्रैक्ट कर सकता है वो. तो रिट्रैक्ट जब करता है वो, तो अगर उसका रिट्रैक्शन का रीजन बड़ा जेन्युइन है तो फिर इसकी नेचुरली लूजेस वैल्यू, रेलेवेंसी, इसकी प्रोबेटिव वैल्यू कम हो जाती है. एक बार वो दोबारा कन्फेशन करता है जब वो कोर्ट में, जब उसका ट्रायल चलता है. अब जो कन्फेशन है वो अंडर ओथ करता है कि तुमने जो 164 का किया था, क्या तुम आज भी उस पर स्टैंड करते हो? हाँ सर. तो जो मेरा 164 का स्टेटमेंट है, जो मेरा आज का कन्फेशन मैं कर रहा हूं कोर्ट में, उसको करॉबोरेट करता है. सो 164 का एविडेंस, जो कन्फेशनल एविडेंस जो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है, वो हमेशा करॉबोरेटिव होता है ऑफ द एविडेंस जो एक्यूज, जो कन्फेशन एक्यूज ट्रायल के दौरान करता है, उसका करॉबोरेटिव एविडेंस बन जाता है. और अगर मैंने 164 में भी वही चीज कही है, कोर्ट के सामने ट्रायल में भी वही चीज कह रहा हूं, और अपने 313 में भी यही चीज मेंटेन कर रहा हूं, नाउ कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ओनली ऑन दीज 3 थिंग्स. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास जजमेंट्स हैं. आई होप नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर कि 26 एविडेंस एक्ट क्यों लिखा गया और किस तरह से लिखा गया. सो व्हेन आई कम टू सेक्शन 26, लेट्स फिनिश दिस सेक्शन. इट सेज no confession made by any person while is in the custody of a police officer unless it be made in the immediate presence of a magistrate under section 164 CRPC shall be proved as against such person. इसका एक एक्सप्लेनेशन है. अब काफी पुराना है ये, अब एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट रिडंडेंट हो गया. इन दिस सेक्शन मैजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ अ विलेज डिस्चार्जिंग मैजिस्ट्रियल फंक्शंस. पहले क्या होता था कि जहां पे पहले हमारी जो ग्राम पंचायत है वो काफी हद तक जुडिशरी का काम भी करती थी, खासकर जहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज के प्रेसिडेंसी में उन्होंने नेचुरली, क्योंकि रीजन था ना कि ये तो गोरे थे, अंग्रेज थे, इनको तो पता नहीं था हिंदू लॉ क्या है या क्या नहीं है, तो दे वर टू बी गवर्न्ड बाय देयर ओन लॉज. तो उन्होंने क्या किया था, हमारा जो ग्रास रूट लेवल जुडिशरी हमने तैयार की हुई थी,
उन्होंने, तो वो उसमें एक मैजिस्ट्रेट लेवल हो जाता था जो सरपंच होता था। अब उसके अंदर जो मैजिस्ट्रेट कन्फेशन ले रहा है, उसके अंदर ऐसे विलेज हेडमैन जिनको मैजिस्ट्रेट का हमने रुतबा दिया हुआ था, वो मैजिस्ट्रेट के डेफिनेशन में नहीं आते। लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन। In this section, magistrate does not include the head of a village discharging magisterial functions in the presidency of Fort St. George or elsewhere, unless such headman is a magistrate exercising powers of a magistrate under CRPC. तो वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट जो CRPC के अंदर मैजिस्ट्रेट माना जाएगा वही मैजिस्ट्रेट है, और कोई डीम्ड मैजिस्ट्रेट जो हैं वो कन्फेशन लेने में सक्षम नहीं है सेक्शन 26 में। I hope everybody is now clear about section 26. Okay. Now that we are clear about section 26, I am coming to a very, very important section, section 27. Let's go to section 27. (27) is a proviso. It's a proviso to sections 25 and 26. Section 27 हमारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। सेक्शन 27 एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का। सेक्शन 27 में डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट है। सेक्शन 27 जो है वो बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पीपीज हैं, एपीपीज हैं, या कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स भी। We have to understand section 27 in the right perspective. Section 27 is one of the most important sections for examination point of view also. क्योंकि सेक्शन 27 का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है रिगार्डिंग द ट्रायल, द इन्वेस्टिगेशन, और सेक्शन 27 कई बार पूरा केस टिल्ट कर देती है अगेंस्ट द एक्यूज्ड। I'm going to discuss this section in great detail because मुझे पता है कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Let me start with certain examples. इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक चोर हमने पकड़ा है, वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अपनी स्वेच्छा से, वन थिंग यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी अगर हम डिस्कवरी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि एक्यूज अपनी मर्जी से बता रहा है। अगर ये प्रूव हो गया कि हमने उसको मारपीट के ये चीज निकाली है, तो वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हिट होता है। माई राइट नॉट टू सेल्फ माई फंडामेंटल राइट ऑफ नॉट टू सेल्फ इंक्रिमिनेट माई सेल्फ। हमने एक चोर पकड़ा, उसको हमने इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसने कहा अपनी मर्जी से
कि जो सामान मैंने चोरी किया था वो मैं रिकवर करा सकता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो कहता है जो सामान मैंने चोरी किया था वो मैं आपको रिकवर करा सकता हूं। जो सामान मैंने चोरी किया था इज अ कन्फेशन। इस पूरे स्टेटमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो सामान मैंने चोरी किया था, बी सामान आपको रिकवर करा सकता हूं, कोई सामान आपको रिकवर करा सकता हूं। जो पहला पार्ट है कि जो मैंने सामान चोरी किया था, दैट इज कन्फेशनल इन नेचर, बीइंग मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, दैट इज हिट बाय सेक्शन 25। वो एडमिसिबल नहीं है। इसलिए जो पुलिस ऑफिसर्स लिखते हैं कि जहां जहां इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उसने बोला कि जो मैंने सामान चोरी किया था वो मैं रिकवर करा सकता हूं, जो ऐसे लिखते हैं, तो जजेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पार्ट को ब्लॉक कर दें कि सॉरी, जो सामान मैंने चोरी किया था इज हिट बाय सेक्शन 25। हां, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। मैं आपको कुछ सामान रिकवर करा सकता हूं। जब मैं कहता हूं कुछ सामान रिकवर करा सकता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सामान मैंने ऐसी जगह छुपाया है जहां पे ऑर्डिनरी लोग नहीं आते या ऑर्डिनरी लोगों की नजर से छुपा हुआ है। तो ये मेरा सामान जो है ये ऑर्डिनरी लोगों की नजर से बचा हुआ है, छुपा हुआ है, सिर्फ मुझे पता है। अगर ये सामान ओपन में पड़ा है तो डिस्कवरी क्या है फिर? डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? जो किसी को नहीं पता वो मैं बताऊंगा, जो सबको पता है वो फिर डिस्कवरी क्या है वो? सो वर्ड डिस्कवरी है, इंपॉर्टेंट है इसमें। सो जहां मैं कहता हूं मेरी प्लेस ऑफ हाइडिंग जी सड़क पे है, 1000 लोग वहां से जा रहे हैं और ओपन में पड़ी है, इज इट अ डिस्कवरी? किसी ने भी रख दिया होगा वहां। तो अब वो जो चोरी का सामान रिकवर, अब पहला पॉइंट, जो सामान मैंने चोरी किया है इज हिट बाय द 25, नॉट रेलेवेंट, नॉट एडमिसिबल। सेकेंड पॉइंट, मैं आपको कुछ सामान रिकवर करा सकता हूं। वो सामान जब आपने रिकवर किया वो कपड़े थे। वो कपड़े चोरी जो हुए थे, जो विक्टिम है उसको आपने बुलाया, वो कोर्ट में गया, उसने कहा जी ये मेरे कपड़े हैं, मैंने नए नए अभी कपड़े सिलवाए थे, मैरिज पे जाना था, बड़े महंगे होते हैं लेडीज के कपड़े, तो मैंने तो जी 50,000 का लिया था ये लहंगा, मेरे पास रसीद भी है। हम पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी ऑफ थिंग्स इज रेलेवेंट। उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी ये यही मेरा गाउन है, मैंने बीच में से लूज था, मैंने थोड़ा टाइट भी किया हुआ है, देख लो। और मुझे याद है जी वो लाल रंग का धागा था मेरे पास उस दिन, धागा नहीं था, खोल के देखो, हर लाल रंग के धागे से टाइट किया हुआ है, आइडेंटिफाई हो गया। अब क्वेश्चन ये उठा, चोर को कैसे पता कि ये गाउन यहां पड़ा है? चोर को कैसे पता? गाउन उसका, वो कह रही है कि मेरा गाउन चोरी हो गया है, चोर आपको ले गया एक तहखाने में, वहां से जाके वो निकाल के ले आया, उसको कैसे पता चला कि गाउन वहां है? अब चोर, गाउन और विक्टिम मैच हो गए। नाउ दिस बिकम्स अ रेलेवेंट फैक्ट, एडमिसिबल फैक्ट अगेंस्ट दिस थीफ, चोर। एक और एग्जांपल लेते हैं। A is charged with the murder of B. A ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहता है वो चाकू जिससे मैंने बी का मर्डर किया
एक भूसे के ढेर में से आपको मैं रिकवर करा सकता हूं। एक भूसे के ढेर में आपको वो चाकू रिकवर करा सकता हूं। अब इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं। वो चाकू जिससे मैंने बी का मर्डर किया इज अ कन्फेशनल स्टेट पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। दिस इज हिट बाय सेक्शन 25, नॉट रेलेवेंट, नॉट एडमिसिबल। दूसरा पार्ट, एक चाकू मैं आपको भूसे के ढेर से रिकवर करा सकता हूं, अलाउड है। तो प्लीज रिमेंबर, जब भी एक स्टेटमेंट होती है हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो चाकू जिससे मैंने बी का मर्डर किया वो मैं एक भूसे के ढेर से आपको रिकवर करा सकता हूं। वो चाकू जिससे मैंने मर्डर किया कन्फेशनल है, इट इज नॉट एडमिसिबल। एक चाकू मैं आपको भूसे के ढेर से रिकवर करा सकता हूं। पुलिस गई, उसकी निशानदेही पे हमने भूसा इतना बड़ा था उसके अंदर से, उसने बोला सर ये वाले भूसे के ढेर के अंदर नीचे देखो वहां है। हमने खोदा, वहां से एक हमें खून से सना हुआ एक चाकू मिला। उस खून से सने हुए चाकू को हमने भेज दिया एफएसएल। एफएसएल में आ गया कि जो उस पे खून लगा हुआ है वो मरने वाले बी का है। चाकू का जो साइज है वो उससे मैच करता है जो बी के इंजरीज हैं जिससे वो मरा। और इस चाकू के ऊपर ए के उंगलियों के निशान हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं। ए को कैसे पता चला कि वो चाकू वहां है? ए ने वो फैक्ट डिस्कवर करवाया, वो रिकवरी कराई उस चाकू की जो बाद में विक्टिम के साथ जुड़ गया। ए को कैसे पता चला कि उस भूसे के ढेर में एक चाकू है जिसके ऊपर उसकी उंगलियों के निशान मिले बाद में, जिसके ऊपर जो ब्लड था वो विक्टिम के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया? ए को कैसे पता चला चाकू वहां है? A now gets connected with the चाकू gets connected with the victim, A gets connected with the victim। ये कहानी पूरी हो गई। अब जो ये चाकू का रिकवरी है एक एडमिशन है। एक चाकू मैं आपको रिकवर करा देता हूं, चाकू मैं रिकवर करा रहा हूं, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट मेरे खिलाफ जा रहा है। क्या यह अलाउ किया जा सकता है? सेक्शन 27 कहता है यस, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट करा रहा हूं। इवन अगर डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट मेरे खिलाफ जाए, इवन अगर डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट कल को मेरे खिलाफ कन्फेशन बन जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरे उंगलियों के निशान है उसके ऊपर, it can still be relevant against me. It is not hit by Article 20 Clause 3. I am not self-incriminating myself. इस चाकू से मैंने खून किया है, ये पार्ट irrelevant है। एक चाकू मैं आपको एक अजीब जगह से रिकवर करा सकता हूं। वो चाकू वहां कैसे पता, उसको कैसे पता वहां था? उस चाकू पे उसके उंगलियों के निशान कैसे आए? उस चाकू पे जो भूसे के ढेर में दूर छुपा हुआ था मरने वाले का खून कहां से आया? कायदे से सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो ऑटोमेटिकली
प्रूव हो गया, वो तो एफएसएल जाके प्रूव हो गया। चाहे ये कायदे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ कन्फेशनल हो रहा है, सो बी इट। मैं कन्फेशन कर नहीं रहा हूं, कन्फेशन अपने आप बन रहा है। जहां कन्फेशन अपने आप बन रहा है वो तो डिसअलाउड नहीं है। आई कैन नॉट बी फोर्स टू सेल्फ इंक्रिमिनेट, बट अगर मैं अपनी स्वेच्छा से रिकवरी करा रहा हूं तो वो फोर्स नहीं है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है वन कैन नॉट बी फोर्स टू इंक्रिमिनेट। ये नहीं लिखा है कि वन कैन नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांस इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ। तो जहां मैं कोई भी स्वेच्छा से कन्फेशन करता हूं वो हिट नहीं है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से। इस बैकग्राउंड के साथ ये क्यों लिखा है, वाई, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? आई विल बी कोटिंग जजमेंट्स ऑन दिस। ऑब्जेक्ट क्या है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान 25 और 26 रेड विद आर्टिकल 20 क्लॉज 3 स्क्वायरली मना करते हैं कि कोई भी कन्फेशन कैन नॉट बी अलाउड। कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन जबरदस्ती अलाउड नहीं है। 25 में हम मान के चलते हैं कि जोर जबरदस्ती है पुलिस की, 26 में भी हम मान के चलते हैं कि पुलिस कस्टडी में जोर जबरदस्ती होती है। और इसी को हम प्रिजम्पशन लेते हुए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में जाते हैं कि यू कांट बी फोर्स्ड टू इंक्रिमिनेट योरसेल्फ, और हम मान के चलते हैं कि 25 और 26 में फोर्स्ड इंक्रिमिनेशन है, इसीलिए हम आपको अलाउ नहीं करते। बट जहां पहला पॉइंट फोर्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से एक फैक्ट को डिस्कवर करा रहे हो, वो आपको कैसे पता चला? अगर आप उससे जुड़े हुए नहीं थे, उस ऑफेंस से जुड़े हुए नहीं थे, आपको कैसे पता चला कि चाकू वहां है? तभी जहां से रिकवरी हो रही है वो सिर्फ मेरी नॉलेज में होना चाहिए, लोग बाग सारों को नहीं पता होना चाहिए कि यहां तो हो सकता है। दैट इज वाई द प्लेस ऑफ हाइडिंग अटेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इन सेक्शन 27। वो प्लेस ऑफ हाइडिंग मेरी एक्सक्लूसिव नॉलेज में होना चाहिए, नहीं तो वो डिस्कवरी नहीं माना जाएगा। इसीलिए सेक्शन 27 कहता है कि नो डाउट कन्फेशन नहीं हम अलाउ कर सकते, बट अगर कोई डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट प्रिज्यूमेबली स्वेच्छा से अपनी मर्जी से वो करा रहा है, तो वो फैक्ट तो सिर्फ इसको पता था, इसको कैसे पता चला? और अगर वो डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट कहीं ना कहीं कन्फेशनल भी होता हो, हमने जबरदस्ती तो लिया नहीं है उससे, और वो एक फैक्ट हमने लिया था अगर बाद में वो जाके एडमिशन बन गया या कन्फेशन बन गया, सो बी इट। इसीलिए सेक्शन 27 शुरू होता है प्रोवाइडेड। लेट्स गो टू सेक्शन 27। प्रोवाइडेड दैट, शुरू ही प्रोवाइडेड दैट किस चीज का प्रोवाइजो है? सेक्शन 25 और 26। नो कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इज अलाउड एंड नो कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड इन द कस्टडी ऑफ पुलिस इज अलाउड, provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, then so much of such information, whether it amounts to confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved. दोबारा पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। Provided that, as I told you, on this I have the Supreme Court,
A. Nagesia versus State of Bihar, 1966 Supreme Court. This section is an exception to section 25 and 26. This section controls sections 25 and 26. In this section, provided that not a confession, please remember, confession under no circumstances is allowed, either in 25 or 26. Provided that अगर कोई fact is deposed to as discovered, अब अगर पुलिस डेपोजिशन देती है कोर्ट में कि ये हमने चाकू डिस्कवर किया है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें एक्यूज ने दी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अपनी स्वेच्छा से, प्रिज्यूमेबली अपनी मर्जी से, कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं था, तो अपनी मर्जी से जो एक्यूज ने इंफॉर्मेशन दी हमें और उसके फलस्वरूप हमने एक फैक्ट को डिस्कवर किया और वो एक्यूज हमारी पुलिस कस्टडी में था, then receipt from a person accused of any offense in the custody of a police officer. So please remember, there can be no 27 discovery if he is not in the custody of a police officer. यहां पे मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा. एक बार मैं I was as I told you, I was ASP under training. वो जो मैंने आपको बताया था ना, वो आया था आदमी मर्डर करके सीधा मेरे पास आ गया कि तू यहाँ SHO है, चल मेरा FIR लिख ले, और ये रही वो गन जिससे मैंने मर्डर किया. It was not discovery of a fact. सीधा आया कि मैंने मर्डर किया और ये ले पकड़ वो गन जिससे मैंने मर्डर किया. There was no discovery. वो खुद ही ला रहा है, ये लो जी पकड़ो. वो 27 में नहीं आती. क्यों? अभी तक वो मेरी कस्टडी में नहीं है. वो सीधा आया, मैं अपने थाने में काम कर रहा हूं, अपनी कुर्सी पे बैठा हूं, एक आदमी मेरे सामने खड़ा आ जाता है, सर मैं मर्डर करके आया हूं, ये लो पकड़ो वो गन, इससे मैंने मर्डर किया. ना वो मेरी पुलिस कस्टडी में है, ना ही कोई डिस्कवरी हो रही है. डिस्कवरी अपॉन इंफॉर्मेशन, दोबारा वो वापस, डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. यहां तो सीधा डिस्कवरी हो रही है. सीधा डिस्कवरी भी क्या दे रहा है, वो खुद दे रहा है. मैं कुछ डिस्कवर नहीं कर रहा हूं, वो सीधा आके कहता है जी ये लो मर्डर करके आया, ये पकड़ो. देयर इज नो डिस्कवरी ऑन बेसिस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन. दो चीजों से हिट हो रहा है. पहला, ही इज नॉट इन पुलिस कस्टडी, अभी तक मैंने उसको गिरफ्तार नहीं किया. दूसरा, it is not a discovery following any information which was given by the accused in my custody, ostensibly during investigation. ये बहुत बारीक चीज है, इसको बहुत ध्यान से सुनना. इसका मतलब है 27 की रिकवरी एडमिसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? Person should be accused of an offense, he should be in police custody, he has given some information and on the base of that information I have discovered a fact. तब यूज हो सकता है, इवन अगर वो फैक्ट कन्फेशनल हो तब भी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसका एक थोड़ा सा और एंगल लिया जिससे मैं फ्रैंकली आई एम नॉट वेरी हैप्पी. वो कहता है, बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहता है, जैसे ही कोई मर्डर करके आया मेरे पास, FIR लिखवाई, मैंने अरेस्ट नहीं किया,
पर क्या मैं उसको थाने से अब जाने दूंगा? विल आई अलाउ हिम टू गो अवे? मर्डर का है, अरेस्ट बाद में होता रहेगा। सबसे पहले मैं क्या कहूंगा संतरी को, दरवाजे बंद कर दे, भागना जाए ये कहीं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट यूज्ड अ टर्म डीम्ड कस्टडी। I would like to share this judgment. ये मेमन मोहम्मद वर्सेस स्टेट 1958 बॉम्बे। यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, वेयर अ पर्सन गोज टू अ पुलिस ऑफिसर एंड मेक्स अ स्टेटमेंट which shows that an offense has been committed by him. He accuses himself, and though he is formally not arrested, since he is not free to move out after the disclosure of the information to the police, he may be deemed to be in custody of the police within the meaning of this section. यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि हम इसको डीम्ड कस्टडी मान सकते हैं। With all due regards to this 1958 judgment, with complete humility and with complete acceptance of the brilliance of Bombay High Court, I would like to put up certain questions which, in my very, very limited knowledge, creep up in my mind. The language of this section is very clear. Firstly, a fact must have been discovered. Had they written a fact must have been discovered, full stop, तो कुछ और मायने थे. But when I use the word discovered on and upon information, discovered on information basically presupposes that he has first given an information which has led to a discovery of a fact. So, Bombay High Court, the Honorable Bombay High Court has held that the fact that he came to the police and informed that I have committed murder with this gun, it means discovery on information. But then the second part is that received from a person accused of any offense, चलो वो खुद मान रहा है मैं accused हूं, in police custody. In police custody को यहां पे अगर हम बॉम्बे हाई कोर्ट को माने तो वो कहते हैं पुलिस कस्टडी कैन बी टेकन एज अ डीम्ड पुलिस कस्टडी, बिकॉज चाहे मैंने उसको फॉर्मली अपनी कस्टडी में नहीं लिया, मैं उसको जाने थोड़ा देने वाला हूं, तो इसीलिए हम उसको डीम्ड कस्टडी मान सकते हैं. I have, with all humility, I say, I have serious reservations on this. The reason being that I have to take police custody from the point of view of section 57 CRPC also. That first I arrest him and my custody starts from the point of arrest. If I was to take this very view, then I will not arrest a person for maybe 10 days. I will say he is in deemed custody. खत्म कहानी. अरेस्ट बाद में दिखा देता, मेरी डीम्ड कस्टडी चल रही है. I am opening a lacuna. I am opening a whole
Pandora's box of problems. अब एक पॉइंट आता है, अब मेरा यही केस ले लो, जब मेरे सामने एक्चुअली मेरे सामने आया था, वो आदमी आया, उसने कहा जी मैंने मर्डर किया, ये लो गन। मैंने मर्डर किया इज हिट बाय सेक्शन 25, दैट पार्ट ऑफ द कन्फेशनल एफआईआर इज यूजलेस एक्सेप्ट एज कॉन्डक्ट अंडर सेक्शन 8। मैंने मर्डर किया है और वो गन ये है। Can I technically call it a discovery? Which he led to after giving me an information, which was during investigation. Investigation has not even started. Maybe the FIR has not been written as of now. Somehow, since I have very, very limited knowledge on law, ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आता है, और अगर समझ भी आता है, ये somehow कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। Coming back, provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of an offense in the custody of a police officer, एक लाइन में पढ़ना है, हम इसको तोड़ तोड़ के अपने सूट नहीं कर सकते अपनी बातों के लिए। Then so much of such information, whether it amounts to confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, as relates distinctly to the fact discovered, ये गन से मर्डर हुआ है, ये गन जिससे मैंने मर्डर किया है, may be proved, तब वो प्रूव कर सकते हो। So section 27 deals with discovery of a fact which has been discovered thanks to the accused, who has willfully given information on the basis of which the police have discovered a fact which may even be confessional in nature. Now, you know, a very important aspect comes. मैं बार बार एक word use कर रहा हूं, fact. I am not using the word discovery of an object. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक है, एक और ये बहुत, it is fallacious. It is wrong to equate discovery of a fact by discovery of an object. फैक्ट क्या है? एक चाकू मिला जिस पे बाद में पता चला मेरी उंगलियों के निशान हैं। फैक्ट क्या है? एक चाकू रिकवर हुआ है। सो प्लीज रिमेंबर, फैक्ट डिस्कवर हो रहा है। वो फैक्ट क्या है? एक चाकू जो वहां मिला, जो मुझे कैसे पता? फैक्ट क्या है? मुझे कैसे पता चला भूसे के ढेर में चाकू है, जिसमें बाद में मेरे उंगलियों के निशान मिले और जिसमें बाद में विक्टिम का ब्लड मिला? हाउ? यू नो, इसीलिए जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रिकवर किया जाए। बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा, मैं आई नोटिस बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स ये गलती करते हैं। वो कहते हैं की चीज रिकवर कितनी, दिखाओ की रिकवर कितना। नो, चीज नहीं लिखा है कहीं, फैक्ट डिस्कवर हो रहा है। फैक्ट क्या है? वो चाकू वहां कैसे पता चला इसको वहां है? एक चाकू यहां पड़ा है, भूसे के ढेर में चाकू तोड़ना होते हैं, इसको कैसे पता चला? ये फैक्ट। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई चीज रिकवर हो। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ माई पुलिस डेज। एक लड़का था जो उन दिनों में डर पिक्चर आई थी, वो
पता नहीं कौन, शाहरुख खान या पत्नी सलमान, जिसकी भी है, तो वो उसको वहां से कोई प्रेरणा मिल गई होगी, तो उसने एक लड़की को फोन करना शुरू किया बेचारी को, वैसे ही। और जो उस टाइम पे मोबाइल्स बहुत नए नए थे, तो इतने बहुत एक्सपेंसिव होते थे, एवरीबडी कुड अफोर्ड। तो उस टाइम पे वो होते थे क्या कहते हैं वो जो होते हैं ना, एसटीडी बूथ होते, बहुत बूथ होते थे, एक मोहल्ले में 5-6 बूथ होते थे, हर जगह जगह पे छोटे छोटे बूथ, एसटीडी बूथ्स होते थे, उसका नाम एसटीडी एंड पीसीओ ये लिखा होता था। तो वहां पे एक लड़की को फोन आता था घर पे, और वो बिल्कुल डर की तरह ना, वो जैसे लड़के डराते हैं वो डराते, वो बिल्कुल बेचारी बुरी तरह डर गई। 300 कॉल आने शुरू हो गए एक दिन में, पेरेंट्स भी डर गए। वो आ गए मेरे पास, उन्होंने बोला सर ऐसे ऐसे आ रहा है, लेट्स। तो मैंने कहा लड़की का ट्रेस करो, तो हमने फोन ट्रेस किया, लैंडलाइन होते थे उस टाइम, तो लैंडलाइन हमने ट्रेस किया, एक एसटीडी बूथ से आता था। हमने वो एसटीडी बूथ वाले को पूछा पछा कि कौन आता है, उसकी निशानदेही पे हमने वो लड़का पकड़ लिया। नाउ यू नो हाउ डिड वी कनेक्ट, कि हमने एक्यूज को पकड़ा। मैं थोड़ा उल्टा जा रहा हूं, हमने कर पहले उल्टा लिया था, बट अगर हम टेक्निकली जाते तो हम कैसे करते। हमने एक्यूज को शक पे पकड़ लिया, हमने एक्यूज को पकड़ के उसके पूछताछ की। अपनी स्वेच्छा से उसने बताया कि मैं वो टेलीफोन बूथ जिससे मैं उस लड़की को तंग करता था, जिससे मैं वहां से 300 कॉल करता था, वहां मैं आपको लेके जा सकता हूं। नाउ दिस पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट कि जिससे मैं उसको लड़की को फोन करता था कन्फेशनल है, इट इज नॉट रेलेवेंट, बट मैं एक एसटीडी बूथ पॉइंट आउट कर सकता हूं। नाउ ही पॉइंटेड आउट टू अ एसटीडी बूथ, और वहां जाके जब हमने चेक किया तो पता चला कि उस बूथ से 300 फोन कॉल गए थे। अब 27 में रिकवरी है। व्हाट? डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट। फैक्ट ये था कि इस बूथ से पता चला इसने 300 फोन कॉल किए, और फोन का बूथ वाले ने इसको पहचान लिया। और एग्जांपल देता हूं फैक्ट्स के। एक चोर पकड़ा, चोर से पूछताछ की, उसने बताया कि ये जो पूरी सोसाइटी है इसमें तकरीबन 80-90 फ्लैट है, इनके मैंने इस फ्लोर पे यहां ताले तोड़े, अंदर कुछ नहीं मिला। जब हमने वहां चेक किया तो वहां ताले टूटे हुए मिले। इसको कैसे पता चला कि 4th फ्लोर के ऊपर ये 4 घरों के ताले टूटे होंगे? इट वॉज डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट। All those who are listening to me, please be very careful tomorrow when you become judges. क्योंकि जब मैं कोर्ट में जाता था तो ये गलती मैं देखता था, जुडिशियल ऑफिसर आम आईओ से पूछते हैं रिकवरी की कितनी, कौन सा ऑब्जेक्ट रिकवर किया। देयर इज नो नीड फॉर रिकवरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। if object happens to be a form of a fact, fine, then it's okay, but we are here talking about recovery of, not recovery of an object, but discovery of a fact. So please remember, we are not at all talking about a recovery, we are talking about a discovery. तो recovery of a object नहीं है। तो जब भी मैं कहता हूं कि चाकू रिकवर हुआ, वो चाकू की रिकवरी इज इटसेल्फ अ डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट। तो बेसिकली वी शुड ऑलवेज बी अंडरस्टैंडिंग it is discovery of a fact which has been discovered because of the special information which only the accused knew, because the discovery of the fact was at a place which only the accused knows. How did he know? And that is what connects him, though it is confessional, though it may be used against him tomorrow, but then it is
relevant and admissible. सेक्शन 162 सीआरपीसी जब हम जाते हैं, आई रन आउट ऑफ टाइम, मैं फटाफट ये खत्म कर लूं पॉइंट, तब आगे अगली बार लेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। 162 सीआरपीसी क्या कहता है कि एनी स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी यूज टू corroborate, वो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करने के काम आती हैं, वो हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे। वहां पे क्लियरली लिखा है कि जो 27 एविडेंस की जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है वो 162 से हिट नहीं होता, दैट इज नॉट हिट बाय 162। ये क्यों है, वाई? अगर ये ना होता तो हम जो रिकवरीज करनी थी वो कैसे करते? पुलिस में हमारे हाथ बंधे हुए हैं। 161 का स्टेटमेंट सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, corroboration के लिए नहीं किया जा सकता सीआरपीसी में। कन्फेशन अलाउड नहीं है, 25 ने हाथ बांध दिए। पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन अलाउड नहीं है, 26 ने हाथ बांध दिए। अब हमने कुछ रिकवर करना है तो वो रिकवरी जो है वो हम प्रूव ही नहीं कर सकते। हमने चाकू रिकवर कर लिया, खून के कपड़े रिकवर कर लिए, चोरी का माल भी रिकवर कर लिया, 1000 चीजें रिकवर कर रहे हैं, तो उस रिकवरी को हम कहां दिखाएं? वो सारे कन्फेशन में चले जाएंगे। वो रिकवरी ऑफ एनी सच थिंग, डिस्कवरी ऑफ एनी फैक्ट, वो सारा कहेंगे जी ये तो कन्फेशनल है, सॉरी इसको यूज नहीं कर सकते। तो कोई भी केस प्रूव कैसे होगा? मर्डर हुआ था, चोरी का मर्डर का वेपन रिकवर किया, नहीं जी वो तो हिट है जी। तो हमें एक विंडो चाहिए थी। अगर ये 27 की विंडो ना होती, कोई केस प्रॉपरली चलान नहीं कर पाते हम, क्योंकि सारा लॉ हम देख रहे हैं कि एक्यूज के एंगल से लिखा हुआ है। जूरिस्प्रूडेंस भी एक्यूज के फेवर में है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। 161 इस चीज को मानता है। 161 सीआरपीसी में जितने आप बयान लेते हो, जितने भी स्टेटमेंट्स लेते हो, वो कहीं corroborate ये नहीं कह सकते सर मैंने 161 में भी यही कहा था, आज मैं कोर्ट के सामने भी ये कह रहा हूं, ये तो चीज प्रूव होगी। नहीं, प्रूव इट कैन नॉट बी यूज। कोई भी स्टेटमेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन का आप यूज नहीं कर सकते फॉर corroboration, सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन कि तूने पहले ये कहा था, आज ये कहा है, वहां सच बोल रहा था कि यहां सच बोल रहा था, तुम्हारे बीच में विरोधाभास है, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ना, वो है। तो सारा कुछ तो आप कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज नो कन्फेशन अलाउड, देयर इज नो कन्फेशन अलाउड आइदर इन 25, 26। अब ये जो चीजें रिकवर कर रहे हैं ये कन्फेशनल होनी है, ये मेरे खिलाफ जाएंगी। जहां मैं खून का कोई अपना चाकू रिकवर करा रहा हूं, अपनी गन रिकवर करा रहा हूं, मेरे खून से सने कपड़े रिकवर करा रहा हूं, मेरे चोरी का माल रिकवर करा रहा हूं, वो सारा मेरे खिलाफ जाने वाला है। तो उसको मुझे कहीं तो विंडो चाहिए, वो विंडो है सेक्शन 27। आई थिंक आई हैव टू स्टॉप हियर, आई विल टेक इट अप फ्रॉम हियर नेक्स्ट टाइम। हम 27 से ही शुरू करेंगे। इसको ध्यान से सुनना, बिकॉज ये चीजें कहीं किताबों में नहीं लिखी हैं, ये बिहेवियरल है, और आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दैट। विल टेक इट अप फ्रॉम हियर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस।